This is a poem that talks about how important a house is for a human being, right? In the At the top of this page, it is written. There are four bullet points. Let's read and understand it. The concept of house has been there since the beginning of human existence, right? जब हम लोग इवॉल्व नहीं हुए थे, where did we used to live? In the forests or inside the cave, right? Caveman उसी को कहा जाता था. हम लोग गुफाओं में रहते थे in order to protect ourselves from the rain, from the heat, from the snow, or we used to stay in jungles. Right? But we always needed some shelter over our head in order to protect us from nature or from danger, whatever it is or whatever it was. Houses provide shelter and protect us from harsh weather conditions and wild animals. There were two main purposes back then. एकदम initial का हम लोग बात कर रहे हैं. Weather conditions harsh होती थी and wild animals का भी खतरा होता था because earlier the humans used to live in the jungles. There were no cities, there was no rural development back at that time. In ancient times, humans lived in the caves, that's what I have just told you. Later, they used animal skin and bones to build their tents. एनिमल स्किन्स को उतार करके उसका टेंट का पर्दा बनाते थे और उनकी बोन्स को लाइक दे यूज टू टाई द स्किन टुगेदर एंड दे यूज टू मेक a tent for themselves, and then they started living in them. Then they started having this idea that okay, they can cut a tree, use its branches, or maybe cut a bamboo, make a sort of structure kind of a thing, and then cover that with the skin of an animal. Some old houses such as castle palaces and long houses are still standing, recreated or preserved. Right? So castle palaces तुम जानते हो किसको कहते हैं, right? Long houses are still standing, recreated or preserved. Recreated का मतलब वैसे ही कुछ पुराने तरीके के मकान आज भी people try to copy them. तुमने देखा होगा लोग even in the modern day architecture people make their homes ऐसा लगता है कि बाहर से that is like a palace, right? या अपने घर को बहुत ही रूरल सा लुक देना चाहते हैं. वो एक I don't know if you have seen, अगर तुम गांव की तरफ जाओगे then you see those tiles, जैसे खपड़ाइल जिसको कहते हैं, brick से बनती है, curved shape की होती है, से झोपड़ियाँ जिससे बनती हैं. People have started using those tiles even in their homes in the city itself, right? So these are different things जो हम लोग recreate करना चाहते हैं जिस तरीके से पहले लोग रहा करते थे. Now we come to the poem, the first stanza, My Corner. I have a corner where I go, a place that no one knows. तो यहाँ पर पोएट नरेट कर रहा है कि उसके पूरे घर में there is a special corner where he feels very safe, where he feels very secure. Even for you as a child, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा एक फेवरेट स्पॉट होगा जहाँ पर तुमको बैठना या लेटना पसंद होगा, यहाँ पर जहाँ पर तुम्हें रहना पसंद होगा. If you ask me, in this whole house where you are sitting right now, what is my favorite place? और माई फेवरेट कॉर्नर, मेरा फेवरेट कॉर्नर इज़ मेरे बेडरूम का एक कॉर्नर है जहाँ पर मैं सोता भी हूँ या मैं अक्सर वहाँ पर बैठ करके आई वर्क ऑन माई लैपटॉप और आई कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज दैट इज़ द कॉर्नर आई फील वेरी comfortable at. Though I have a lot of seating space, I have my coaching table there, I can sit and work on that also. But whenever I am free or whenever I have to concentrate or whenever I have to think something deeply, then I prefer going there and sitting in that particular corner क्योंकि वहाँ पर मुझे एक sense of security मिलती है. I feel very good there. So I have a corner where I go, a place that no one knows. ऑथर ये साफ साफ कह रहा है कि उस कॉर्नर के बारे में किसी को नहीं मालूम है. इट इज़ ओनली नोन टू मी. एंड देन ही इज डिस्क्राइबिंग इट. वो कॉर्नर क्या क्या करता है इसके लिए. इट इज़ वेयर आई सिट टू हैव माई थाट्स. मतलब यहाँ पर पोएट जो है वो बैठ करके सोचा करता है. वी समटाइम्स थिंक, राइट, वॉट एवर थाट्स कम टू आवर माइंड्स. हम किसी एक जगह पर फॉर एग्जांपल जब बड़े लोग हो जाते हैं या तुमने देखा होगा, हो सकता है तुम्हारे पापा या मम्मी या किसी रिलेटिव को पसंद हो कि बालकनी में बैठ करके चाय पी रहे हैं, सुबह का मॉर्निंग व्यू देख रहे हैं. सो एवरी पर्सन हैज़ हर और हिज फेवरेट स्पॉट इन देयर हाउस. यू कैन कॉल इट ए कॉर्नर और यू कैन कॉल इट ए स्पॉट. अब यहाँ पर ये बैठ करके क्या करता है. इट इज़ वेयर आई सिट टू हैव माई थाट्स and plan my life, I suppose. मतलब he sits here and he plans about his future,
राइट, ये आगे के बारे में सोचा करता है, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड. यहाँ पर पोएट इज टेलिंग और written this poem from the perspective of a child. In the picture also, he's sitting in a corner and he's looking out of the window, and a number of thoughts come to his minds, and mostly those thoughts are regarding his what? Rajveer, batao. Sir, about his life. About his life, about his future life, right? अब उसकी present life के बारे में भी सोचता है, but mostly the focus is on the future. In the second stanza, look in the book, in the second stanza he uses a number of adjective. Mainly इसने सबसे एक prominent adjective use किया है second stanza में इस corner को describe करने के लिए. It is quite a quiet little spot. फर्स्ट वाला क्वाइट क्या है, उसको सर्कल करो, उसके ऊपर लिखो एडवर्ब है. रिमेंबर येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. कल ही हम लोगों ने एडजेक्टिव वाला टॉपिक ख़त्म किया है, एंड आई टोल्ड यू अलॉन्ग साइड कि एक एडवर्ब जो है वो 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब का काम होता है, इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, इट कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब, और इट कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव. The example that I gave you yesterday, it is too hot today. तो hot was the adjective and too was the adverb. वैसे यहाँ पर quite जो लिखा हुआ है, the spelling, the pronunciation and the meaning, both these words are totally different. Quiet versus quiet. Quiet means silent, it is an adjective. Quiet को circle करके उसके ऊपर लिख लो adjective and the meaning is silent. Peaceful, silent or peaceful. And quiet जो उसके पहले लिखा हुआ है, that is an adverb. एंड क्वाइट का मतलब होता है वेरी. इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ एन एडवर्ब और इसका मीनिंग है वेरी. तो कितना क्वाइट है उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंट बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वाइट, छोटा सा एक स्पॉट है जहाँ पर एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस है. एंड आई फील वेरी एट पीस वाइल सिटिंग देयर, आई फील ब्लिस, आई फील वेरी काम, बिकॉज वहाँ पर शोर शराबा नहीं है. वॉट एवर दैट कॉर्नर ऑफ द हाउस इज. As quiet goes, it is all I have got. इसका मीनिंग देखो, इफ़ यू टर्न द पेजेस, तुम्हारे स्कूल में मैम ने तुमको ये मीनिंग भी लिखवाया है. एग्जैक्टली इस फ्रेज का मीनिंग क्या है. As quiet goes, it is all I have, right? अब इसके यहाँ पर एक तो मीनिंग ये लिखा हुआ है, to think well and be able to plan for the future, one needs to sit silently with no disturbance. See, did you find it? As quiet goes, it is all I have. No, on the other page. On the other page. Did you find it? This is on page number 43. Page number 43, question number C. As quiet goes, it is all I have. यहाँ पर इसका मीनिंग देखो. To think well and be able to plan for the future, one needs to sit silently with no disturbance. If I ask you, okay, Rajveer, like yesterday I gave you that funny topic of story writing. Even though the beginning of the story was very funny, but still you have to think about it in order to write that story. Similarly, when a person has to plan for her or his future, then that person needs some silence. और उस silence को ऐसा नहीं कि हम किसी स्ट्रेंज जगह पर जा करके साइलेंस ढूंढें, ऐसा नहीं कि हम कहीं जंगल या पहाड़ में चले जाएं साइलेंस ढूंढने के लिए. हमें अपने ही सराउंडिंग में, इन आवर ओन हाउस, इन आवर ओन रेसिडेंस, वी विल हैव टू फाइंड आउट और फिगर आउट एक ऐसा फेवरेट स्पॉट या प्लेस जहाँ पर आवाज़ कम आती हो, एंड वेयर वी कैन थिंक विद क्लैरिटी कि आगे हमको क्या करना है. ऑल्सो एज क्वाइट गोज, इट इज़ ऑल आई हैव गॉट. इसका एक और मीनिंग है इस लाइन का. इसको सर्कल करके यहाँ पर इस बुक में लिखो, टेक आउट योर पेंसिल, इसको लिखो. एज क्वाइट गोज, इट इज़ ऑल आई हैव गॉट. इसको पूरा अंडरलाइन करके इसके बगल में एक और इसका मीनिंग लिखो. एज फार एज साइलेंस इज कंसर्न्ड, जहाँ तक एज फार एज साइलेंस इज कंसर्न्ड, जहाँ तक साइलेंस की बात है. एज क्वाइट गोज, एज क्वाइट गोज, जहाँ तक एज फार एज साइलेंस इज कंसर्न्ड. कंसर्न्ड का मतलब जानते हो ना, जहाँ तक साइलेंस की बात आती है. एज फार एज साइलेंस इज कंसर्न्ड, दिस इज द ओनली प्लेस इन द हाउस विच इज साइलेंट. दिस इज द ओनली प्लेस इन द हाउस विच इज साइलेंट. इस लाइन का ये भी मतलब है. जहाँ तक क्वाइटनेस की या कामनेस की बात है या साइलेंस की बात है,
द होल हाउस इज़ अ वेरी नॉइजी प्लेस इस पोएट या इस छोटे बच्चे का, बट जहाँ तक साइलेंस की बात है, इट इज़ दिस पर्टिकुलर स्पॉट और दिस कॉर्नर दे वेयर ही सिट्स, इट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर इसको साइलेंस मिलता है. दैट इज़, ही सेज, एज क्वाइट गोज इट इज़ ऑल आई हैव गॉट. जहाँ तक साइलेंस की बात है, this is the particular corner where I find a lot of silence. Then, the next line of the stanza. When people ask me where I have been, I do not know if I should tell them or not. Obviously, ये बच्चा जो है या ये जो poet है, he thinks or since he likes that little peaceful corner so much कि वो वहाँ पर घंटों तक बैठा रहता है. और obviously when he is absent फ्रॉम अदर प्लेसेस तो लोग क्यूरियस होते हैं, पीपल बिकम इंटरेस्टेड और उस बच्चे से पूछते हैं कहाँ थे भाई तुम इतनी देर तक, क्या कर रहे थे. बट दिस पोएट और दिस लिटिल चाइल्ड, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल देम. ही इज़ अनश्योर कि क्या मुझे इन लोगों को ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए. वाई डू यू थिंक ही इज़ अनश्योर दैट ही शुड टेल देम और नॉट? तुम्हारा क्या सोचना है? They will come and disturb him. Yes, they will come and disturb him. Probably they will talk more to him and they will disturb the peace of his mind. So ये अभी confused है. Obviously वहाँ पर बैठ करके जो भी ये सोचता है, those thoughts that come to his mind, do you think ये जो thoughts इसके कॉर्नर में आती हैं, इस कॉर्नर पे बैठ करके जो इसको आती हैं, does he share with everyone? No, right? तो जब ये शेयर नहीं करना चाहता है, these thoughts, these ideas are very personal to him. सो इसीलिए ये अभी छोटा बच्चा है, ये डाउट में है वेदर आई शुड टेल पीपल और नॉट, कि मैं कहाँ बैठा हुआ था और मैं क्या सोच रहा था. लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा. देर आर अ लॉट ऑफ अदर किड्स दैट आई हैव सीन हु नीड दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस आई मीन. नाउ ही इज, इट ऑल्सो शोज, इट मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. पहली बात तो ये जो बच्चा है ये बहुत ही काइंड हार्टेड है. इसने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से अदर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हैव देयर पर्सनल स्पेस और अ पर्सनल कॉर्नर इन देयर हाउस. लेट्स टॉक अबाउट अ पुअर फैमिली. डू यू थिंक अ पुअर फैमिली दैट लिव्स इनसाइड वन रूम, वहाँ पर कोई ऐसा बच्चा उसका अपना एक कॉर्नर हो सकता है? नहीं हो सकता है, राइट? तो ये ऐसे सारे बच्चों को, या अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के बारे में बात कर रहा है, या हो सकता है अंडर प्रिविलेज्ड किड्स भी ना हो. कई जगह ऐसा होता है कि घर बहुत बड़े हैं बट उसमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा है और वहाँ बच्चा भी है कोई, एंड दैट चाइल्ड लुक्स फॉर अ पर्सनल कॉर्नर इन दैट होल हाउस बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड दैट. दैट कैन बी वन सिचुएशन. द अदर सिचुएशन कैन बी कि घर ही इतना छोटा हो जहाँ पर बच्चे को अपना पर्सनल कॉर्नर उसका कोई हो ही ना, राइट? सो इसीलिए इसने कहा है देर आर अ लॉट ऑफ अदर किड्स दैट आई हैव सीन. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है, who need that sort of space. Sort का मतलब क्या होता है? Tell me. Sort of. So like. Type of. No. Odd. Sort के ऊपर लिखो type. इस तरीके का स्पेस चाहिए होता है. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको ठीक ऐसा ही स्पेस, इसी टाइप का स्पेस चाहिए होता है. Who need that sort of space. And why does he think that he needs that, the other children of his age need that sort of a space? क्योंकि इसको खुद फील हो रहा है कि ये कॉर्नर इसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. It is only when he sits in this particular corner of his house, ये काम फील करता है. He feels relaxed. He thinks about his future. तो ये अपने एज ग्रुप के बाकी बच्चों के साथ एम्पैथी रखता है. एम्पैथी का मतलब टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज़. अपने आप को बाकी बच्चों की कंडीशन में रख करके सोचता है और ये सोच रहा है कि जो प्रिविलेज मुझे मिला है ये कॉर्नर होने का घर में, ऐसा ही कॉर्नर हर एक बच्चे के हर एक घर में होना चाहिए. Then he says, but in this place I am all alone, so I am not telling you anything. Clearly इन दो लाइन्स का मतलब क्या है? This is my personal space and I am not going to reveal what, or I am not going to share what I think while sitting here. ये मेरा अपना personal space है. For example, अगर आप bathroom में you are attending nature's call or you are taking a bath, that is your personal space. Nobody can enter the bathroom in. But वैसे ही इंसान का, like people, when you grow up or even as a child, यहाँ पर तो इस केस में the poet is just a child. He is talking from the context of a child. ये कह रहा है कि ये place मेरा अपना personal space है and I am not going to tell anyone anything कि मैं यहाँ पर बैठ करके क्या सोचता हूँ. ठीक है. Then comes the last stanza. Though I do not have a bed or a phone, my corner is like a little home. Okay, so Rajveer, let's focus on the fourth stanza.
Though I do not have a bed or a phone. You know the meaning of though? It is a conjunction, right? Though का meaning यहाँ पर क्या है? ऊपर लिख लो however, हालांकि. अब ये कह रहा है मे बी दिस चाइल्ड इज़ फ्रॉम अ पुअर फैमिली, या हो सकता है इस ऐसे सर्कमस्टांसेस हों इसके घर में कि इसके पास ना ही बेड है इसका अपना सोने के लिए, ना ही इसका कोई पर्सनल फ़ोन है. दो आई डू नॉट हैव अ बेड और अ फ़ोन, माई कॉर्नर इज़ लाइक अ लिटिल होम. इसके घर के अंदर वो जो पर्टिकुलर कॉर्नर है ये उसको अपना घर मानता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसके पास ना बेड है ना इसका पर्सनल फ़ोन है. ठीक, डू दैट. इसके पास ना इसका बेड है ना इसका पर्सनल फ़ोन है, बट वो जो पर्टिकुलर कॉर्नर है वो इसके लिए इसका अपना यूनिवर्स है. ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता है, जबकि इसका अपना बेड नहीं है. नाउ तुम्हारा बेड, डू यू फील कंफर्टेबल इन द बेड दैट यू स्लीप इन? Yes. ये राइट. व्हेन यू स्लीप और व्हेन यू लाई डाउन टू रेस्ट, बहुत सारी थॉट्स आती होंगी तुम्हारे दिमाग में कि आज दिन भर वॉट एवर हैपेंड विथ मी, कल मैं क्या करूँगा, रिगार्डिंग गेम्स, रिगार्डिंग योर स्टडीज़, रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स. सो ये सारे थॉट्स हम लोग को अक्सर कब आते हैं? अपने बेड पर लेट करके. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस इस बच्चे के पास अपना बेड नहीं है जहाँ पर ये बैठ करके सोच सके, थिंक डीपली, राइट. तो ऐसा इसके पास प्रिविलेज नहीं है. इसीलिए ही सेइंग, तो मेरा जो कॉर्नर है दैट लिटिल कॉर्नर इज लाइक अ लिटिल होम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द टू लाइन्स, द लास्ट टू लाइन्स, दैट आई विल रिमेंबर व्हेन आई हैव ग्रोन, दैट आई विल रिमेंबर व्हेन आई हैव ग्रोन. रेपिटेशन यहाँ पर क्यों किया है? एम्फेसाइज करने के लिए कि ये कॉर्नर इसका इतना इंपॉर्टेंट है दैट इट विल रिमेन इन हिज हार्ट फॉर एवर. He means to probably say जब ये बड़ा भी जब हो जाएगा, when he will start earning, हो सकता है he will have a house of his own, a much bigger house, he will have his personal phone, he will have his personal bed, maybe a very huge bed, maybe a very small bed, but फिर भी this particular corner he will never forget, क्योंकि ये corner इसके लिए क्या है? Special है. This corner is very very special for him, right? And क्यों ये special है? पहले अगर हम लोग 2-3 रीजंस दें, इट इज़ दी ओनली कॉर्नर इन द हाउस जो कि क्वाइट है, राइट. इट इज़ वेरी क्वाइट, सॉरी, इट इज़ क्वाइट क्वाइट, वेरी क्वाइट है. एंड यहाँ पर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, नॉइस नहीं है यहाँ पर. ही फील्स वेरी पीसफुल, ही फील्स वेरी रिलैक्स्ड, एंड दिस इज़ दी ओनली कॉर्नर इन द हाउस वेयर ही सिट्स एंड ही कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर. सेकेंडली, सिंस ही डज नॉट हैव अ बेड और अ फोन, दिस ऑल द मोर, और बल्कि इस कॉर्नर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने बेड्स में लेट करके जब बिल्कुल कम्फी हो जाते हैं, व्हेन वी वेयर कवर आवरसेल्व्स विद अ ब्लैंकेट, पुट आवर हेड्स ऑन द सॉफ्ट पिलोज, तब हम लोग आगे के लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, राइट. बट सिंस ही डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज टू थिंग्स, नीदर ही हैज़ अ बेड, नीदर ही हैज़ अ फोन, सो दिस स्पेशल और लिटिल कॉर्नर इज़ अ वेरी स्पेशल वन. डू यू हैव एनी डाउट्स नाउ फ्रॉम दिस पोएम? ऑलराइट, फाइन. ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस to the end. Your question answers are already given. I'll also give you some additional questions apart from these. ठीक है.